Assalamu alaikum students. Today we have to start with Walking on the Moon by David R. Scott. Like like the previous lessons, you should first go to the backside and read about David R. Scott के who was he. He was an astronaut. ये सारा कुछ आपने पढ़ना है detail. It's now your work. Or President Kennedy had taken this decision that a spaceship should be sent to moon, and because they were competing with the Russians. ये सारी इसकी बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड है कि हाउ मेनी spaceships were sent and who was David R. Scott. You have to read it on your own. Yeah, you should read it because the lesson is written by David R. Scott, who was a astronaut, and this is his first hand experience of landing on the moon. The lesson Walking on the Moon gives a vivid account of Scott's experience on the moon and shows how figurative language can serve an exposition. So उसने इसको scientific तरीके से नहीं पोर्ट्रे किया लेसन को, उसने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की है, उसने से अपना एक्सपीरियंस वहाँ का शेयर किया है और हमें जो है ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वी फील फेमिलियर विद इट, और अर्थ से उसको कंपेयर करके दिखाया. सो यू हैव टू रीड इट. हाउ डज़ इट फील लाइक वॉकिंग ऑन द मून. उसने बताया है कि कैसा लगता है मून के ऊपर चलना, और मून की सरफेस के बारे में उसने इस डिटेल बताई है इस लेसन में. सो रीड अबाउट डेविड आर स्कॉट, द कंप्लीट इंट्रोडक्शन on your own. Now coming to the lesson Walking on the Moon, and this is the starting कि मून पे वो उतरने से पहले they were circling around the moon on their spaceship. 60 feet above the moon, the blast of our single rocket churns up a great tumult of lunar dust. You should make it a habit that to keep a dictionary with you. I don't need to write meaning क्योंकि churns means stirs, लेकिन क्योंकि you are getting MCQs type papers as well, there are chances still कि fourth year का तो हो ही रहा है, third year का भी हो इस तरह. So you should keep a dictionary with you, राइट. और इसकी बैक पे भी मीनिंग्स हैं, पीछे से उतार के आगे उनको नोट डाउन करें सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट मीनिंग्स. ग्रे ट्यूमल्ट कहते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ लूनर डस्ट. उनका जो रॉकेट जो था वो जब उसके मून के ऊपर 60 फीट अबव ही था, तभी से ही एक लूनर डस्ट का जो डिस्टर्बेंस थी वो शुरू हो गई, क्योंकि मून की सतह पे डस्ट ही है ज़्यादातर, और उसने इनको हर तरफ से सराउंड कर लिया. इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि it blinded them, and I feel the rest of the way down on the gauze with an abrupt jar on lunar module को आगे वो LM बोलेगा, अपनी वो spaceship का नाम उसने बताया lunar module, strikes the surface and shudders to rest. We have hit our target squarely, our large amphitheater gridded by mountains. So in this paragraph he is describing how they landed on the moon on their LM, and जब वो उस target पे पहुँचे कि it was an amphitheater. Amphitheater means a place which is surrounded on all sides. Over here it is surrounded on all sides by mountains, और जहाँ वो and a deep canyon, और कहीं पे deep mountain भी है और एक बहुत deep cavity भी है at the eastern edge of a vast plain. कहीं मून की सतह हमवार नहीं है, कहीं पे अचानक से पहाड़ है और कहीं पे डीप वैली शेप कैविटी है. So as James Irwin is his companion, and I waited for the dust to settle, I recall the 12 revolutions we have just spent in lunar orbit aboard our Apollo 15 spaceship Endeavour. So अब लैंड कर चुके हैं, लेकिन लैंड करने से पहले उन्होंने कितनी रेवोल्यूशंस ली? 12 रेवोल्यूशंस. यू कैन अंडरलाइन दिस. MCQs में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं. What is the name of their lunar module? The name of their lunar module is Apollo 15 spaceship Endeavour. This is again an MCQ type question, but you have to prepare for long questions as well. जब भी आपके पेपर होंगे, we do not know for sure, but you should be prepared for both. Each 2 hours found us completing a full circuit of Earth's ancient satellite. 2 घंटे जो इन्होंने गुजारे वो
उन्होंने उसमें दे वर कंप्लीटिंग अ फुल सर्किट ऑफ अर्थ्स एंशिएंट सैटेलाइट, 2 घंटे उनको लग रहे थे पूरा उसको घूमने के मून के गिर्द। एंशिएंट सैटेलाइट यहाँ पे मून को कहा है। 1 hour नाइफिंग थ्रू ल्यूनर नाइट, देन सनराइज एंड एन आवर ऑफ डे लाइट। 1 घंटा उनको लगता था उस जगह से मूव करने में जहाँ नाइट हो रही थी, और 1 घंटा वहाँ जहाँ डे टाइम हो रहा था। सो मून में आधी तरफ नाइट थी और आधी तरफ डे हो रहा था। एंड देन व्हेन ही ऑर्बिटेड आई फाउंड अ पर्टिकुलर फैसिनेशन in that sector of the darkened moon bathed in earth's shine. And then he's saying कि वो sector of the moon which was completely dark, जहाँ sunshine नहीं पड़ी थी, वहाँ फिर भी earth की shine आ रही थी, और earth की shine बहुत bright shine जो थी वो फिर भी आ रही थी, बिल्कुल darkness नहीं थी moon की dark side पे। The light reflected by our planet illuminates the sleeping moon much more brightly than moonlight silvers our own night. सो वो जो सतह मून की जहाँ अंधेरा था, उसको अर्थ की लाइट जो है वो उससे कहीं ज़्यादा रोशन कर रही थी। इल्यूमिनेट इज़ टू ब्राइटन, उस सतह को कहीं ज़्यादा ब्राइटन कर रही थी जितना अब एज़ कम्पेयर टू द मून। जितनी मून लाइट हमें अपनी सिल्वर लाइट दे रहा होता है, उससे कहीं ज़्यादा अर्थ ये जो है वो सन की लाइट को रिफ़्लेक्ट करके मून की तरफ फेंकती है। मून भी सन की लाइट को रिफ़्लेक्ट करके अर्थ की तरफ फेंकता है, लेकिन वो इंटेंसिटी उतनी नहीं होती जितना अर्थ की लाइट जो रिफ़्लेक्ट हो रही है मून के ऊपर। The mountains and Carter's crims are clearly seen. Carter's over here means deep valley, narrow, deep cavity like shape. As I told के mountains भी हैं moon के ऊपर, और deep cavities या deep valleys हैं, उनकी edges जो हैं वो नज़र आ रही हैं। दोनों तरह की सतह मून की, और हमवार सतह ज़रा कम ही है। I will always remember Endeavour hurtling through that strange night of space before us, and above us stars sprinkled the sky with their distant icy fires. Then he says कि he will always remember कि किस तरह Endeavour जो थी, it was moving through that strange night of space, और अचानक से किस तरह डे लाइट और नाइट पे मूव कर रही थी, और स्टार्स उनको हर तरफ फैले हुए और चमकते हुए नज़र आ रहे थे स्काई में, ऐसे जैसे दे आर डिस्टेंट आइसी फायर्स। बिलो ले द मून्स फार साइड, और नीचे जो थी मून की दूर तरफ की जो साइड थी वो नज़र आ रही थी। एन आर्क ऑफ इम्पेनिट्रेबल ब्लैकनेस, और जो वो उसकी ब्लैक साइड थी वो बिल्कुल जो थी इम्पेनिट्रेबल लग रही थी कि उस पर कोई चीज़ उसके अंदर ना जा सकती हो, पेनिट्रेट ना कर सकती हो। दैट बॉटल द स्काई या फर्मामेंट। देन एज अ मोमेंट ऑफ सनराइज अप्रोच्ड, अब वहाँ पे जो जहाँ ये लैंड किए हैं वहाँ ना अभी दिन था ना रात थी। Now the sun is rising over there, it's time of dawn. So an barely discernible streamer of light, and then the sunrise approached, और जो sunrise थी उसका जो moment था, it was you can say barely recognizable. sun का ग्लो करना। एक्चुअली द ग्लोइंग गैसेस ऑफ द सोलर कोरोना मिलियंस ऑफ माइल्स अवे प्लेड अबव द मून्स होराइजन, और ऐसे लग रहा था जैसे सन जो है वो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, उसकी ग्लोइंग गैसेस नज़र आ रही हैं सोलर कोरोना की। कोरोना कहते हैं क्राउन लाइक सरफेस। सो सन का जो राइज़ करना है मून पे, वो सीन भी उससे डिफरेंट है जो अर्थ पे होता है। एज़ कम्पेयर टू अर्थ, द सीन ऑफ राइजिंग ऑफ द सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मून, और वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई गैसेस जो हैं वो चमक रही हों, और सोलर कोरोना नज़र आ रहा है, यानी कि सन के गिर्द एक उसकी जो है रोशनी जो है वो नज़र आ रही है, क्राउन लाइक सरफेस उसकी नज़र आ रही है। Played above the moon's horizon, finally the sun exploded into our view like a visual thunderclap, और सन से पहले जो है उसकी रोशनी नज़र आ रही थी, और अब सन जो है वो राइज हुआ है। Abruptly, completely in less than a second, its harsh light flooded into the spaceship and dazzled our eyes. So sun is dazzling their eyes, rise कर गया है, and we look into the early lunar morning from Endeavour, और अब early lunar morning को देख रहे हैं अपनी शिप पे बैठ के। The moonscape stretched to the distance, हर तरफ फैला हुआ है मून की ज़मीन, और कलर क्या है मून की सारी ज़मीन का? मिल्क चॉकलेट।
लॉन्ग एंगुलर शेडोज़ नोटिसेबल बना रहे हैं हर हिल को और कार्टर को, जिस तरह शेडोज़ पड़ रहे हैं सन की वजह से, हर हिल को भी नोटिसेबल बना रहे हैं और कैविटी को भी. Cavities, you can say crater का वर्ड बार बार आएगा. दैट मीन्स अ डीप कैविटी, अ डीप होल और अ डीप वैली. एज द सन आर्क्ड हायर, अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता गया है सन, इट्स कम्प्लीटली राइजिंग. द प्लेन्स, हमवार सतह, कैनियंस मीन्स वैलीज़, डीप नैरो, कैविटीज़ और माउंटेन्स, यही है मून की सतह. कुछ जगह हमवार है, फिर कहीं पे जाके कुछ जगह प्लेन या हमवार है और कहीं पे फिर अचानक खड्डा आ जाता है, फिर माउंटेन्स आ जाते हैं. दे आर ब्राइटेंड टू अ गन मेटल ग्रे, कलर इज़ मिल्क चॉकलेट, और ब्राइट जब सन पूरी तरह ऊपर आ गया है तो गन मेटल के जैसा ग्रेश कलर है. और शेडोज़ भी अब ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि सन ऊपर की तरफ उठ रहा है. At full lunar noontide, the sun glared down upon a beached and almost featureless world. There is no feature of कोई उसका दरख्त नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है. There is just lunar sand everywhere.